Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are very well, fit and fine, healthy, and putting a lot of efforts, studying very well, right? And with that, practicing also very well. Yes, because that is important in terms of understanding, in terms of learning the language, in terms of learning how to make sentences, how to speak about different situations. It's important to keep thinking, keep making sentences, and keep using them. This is one of the things that I say in every class because that is very important. That's what you have to keep in head all the time, that there is no shortcut, right? So practice is the only way where you can learn the language, you can learn how to speak the language comfortably. And for that, we have different structures. And when we talk about different structures, it's important to understand how to use them in different situations. So that's why we also talk about the situations, that according to the situation, you need to make a sentence or you need to ask a question because that depends on the situation. So situation could be related to today, situation could be related to yesterday, situation could be related to tomorrow, right? Situation, it could be related to something that you want to say related in terms of talking about possession. So when you talk about possession, then again, you have present, past, future. So that's why in the language, we have so many structures, right? And when we talk about so many structures, it simply means that you have to use all of them. All of them, it means that as per the situation, sometimes you will require present related sentences. Sometimes you will talk about past related situation. So there you will use past related sentences. Sometimes you will talk about positive things, right? Positive things, it means positive sentences you will use. So you need to use positive sentences. Sometimes you will talk about the singular subject, sometimes plural subject. So you have to keep all these things in head, and according to the situation, according to the subject, according to present, past, future, you need to make sentences, right? And that's why it's important to get into the habit of using them a lot. इसलिए important है कि इनको बार बार यूज करते रहेंगे. इट मीन्स हमारी प्रैक्टिस हो रही है, डिफरेंट सिचुएशंस में हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे फिर हम उसको हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके सेंटेंसेस यूज करने के, वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाएंगे. एंड इसलिए इन सारी क्लासेस में हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, सिचुएशंस देख रहे हैं, एक्सरसाइजेस देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशंस वाइज हम सेंटेंसेस यूज करना है, सब्जेक्ट वाइज. ओके, so this is important. And today also we are going to talk about situation related to past. Okay, in the last class we talked about to understand the difference between regular verbs and irregular verbs. ये हमने last class में किया था कि कैसे हमको regular verbs and irregular verbs में difference पहचानना है, समझना है, and very easy, right? कुछ उसमें difficult नहीं है. हाँ, थोड़ा सा difficult वाला part ये है कि जितने भी वर्ब्स हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जितने भी वर्ब्स हैं उनके 3 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट फॉर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जांपल, जब आप किसी सेंटेंस में वर्ब यूज करना चाह रहे हैं तो आप वर्ब यूज करेंगे, राइट? क्योंकि आपको पता है कि एक्शन की बात हो रही है, एक्शन होना है, तो इट मीन्स वर्ब इज देयर, यू विल यूज वर्ब. So first form you will use if you know the meaning of that word, if you know that this is verb, right? So you would be able to use first form very easily and comfortably. But if you want to use it in past situation, then it means that you know second forms. If you want to talk about different situation, for example, we also use past participle or third form for perfect situations. So there we will use third forms, right? So as per the situation, you need to use verbs. And इसलिए यहाँ पे second forms, third forms, हर verb के 3 forms हैं. फर्स्ट फॉर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अच्छे से हमको विथ स्पेलिंग, ओके, हमको ध्यान में रखना है. एंड ध्यान में रखना के मतलब ये नहीं है कि हमको उनको
क्या करना है हमको। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिस्ट बना ली सारे वर्ब्स की एंड हम उनको याद कर रहे हैं। नहीं, जैसी सिचुएशन है जहाँ पे जैसा सेंटेंस यूज होना है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ब्स का ध्यान रखिए एंड धीरे धीरे जैसे आप सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं वर्ब्स का ध्यान रखिए, उनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स को यूज करते रहिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ब गो यूज कर रहे हैं, राइट, सो हम गो कॉमन वर्ब है क्योंकि कम कॉमन वर्ब है, टॉक कॉमन वर्ब है, लाफ, राइट, ये सब कॉमन वर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं। सो ऐसे जैसे जैसे सिचुएशन में वर्ब्स आप इनकाउंटर करते जाएं उनको यूज करते जाएं, बस वहां पे देखिए कि मुझे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसका अच्छे से पता है नहीं पता, राइट, नहीं पता है तो यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ड्राइव, ओके, वर्ब है, सो ये देखिए चेक करिए कि डू आई नो द सेकंड फॉर्म विथ स्पेलिंग, डू आई नो द थर्ड फॉर्म, डू आई नो हाउ टू प्रोनाउंस the word in second and third form. So drive, drove, driven. Okay, so this we use for car, vehicles. Okay, four wheelers, more than four wheelers, we use this word drive. So for two wheelers, we use the word ride. So if ride is a verb, तो क्या हमको पता है कि ride का second form क्या है, third form क्या है, right? So जैसे हम verb sentences में use कर रहे हैं, वैसे यूज करते करते उनको देखिए, चेक करिए कि आई नो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म विथ स्पेल, विथ प्रोनाउंसिएशन। जैसे लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड देखा था सिंपल कॉमन वर्ब दैट इज रीड। सो रीड कॉमनली यूज है। ओके, सो इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग चेंज नहीं होनी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होना है। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन हैंड। जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट, सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। ओके, एंड उनको यूज करते रहना है एंड फिर वो नेचुरल हो जाना है। फिर वो नेचुरल हो जाएंगी, देन दे विल कम ऑटोमेटिकली। Okay, so in the last class we talked about regular and irregular verbs, and today we will see कि ये जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड फॉर्म्स एंड थर्ड फॉर्म्स, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म्स यूज कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म्स यूज करेंगे एंड सेकंड फॉर्म्स यूज करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे? सो यस, डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन है एंड कॉमन सिचुएशन है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो इट मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू यूज इट अलॉट। ओके, सो ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएं, यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, यूजिंग सेंटेंसेस इजी। ओके, सो ओके, राइट, so we are going to talk about this situation today, and we will see some situations, some exercises to understand in a better way. Okay, so today is our 25th day, and again, important part is keep on analyzing, right? Number of days you have covered, number of days in these days you have learned. Okay, so what is your comfort level? Okay, about all these things that we have completed, कितने comfortable हैं आप? Okay, so keep on checking this part, and ये आप जब check करेंगे, it simply means आपको use करते करते इनको check करना है, तभी understanding clear होगी। चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स देखे एंड वहाँ पे हमने ये समझा कि हाँ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ईडी पे एंड होते हैं, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। ईडी के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ओके, ये आपको याद करना है कि इन वर्ब्स में ईडी लगेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हम कुछ ऐसे पहचान पाए कि हाँ ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ईडी लगेगा, नहीं। ये आपको याद करना ही है, मेमोराइज करना ही है। एंड मेमोराइज का मतलब ये नहीं है कि एक बैठ के रजिस्टर में सारे वर्ड्स लिख लेंगे, नहीं। जैसे जैसे वो वर्ड्स यूज होते रहे सेंटेंसेस में आप यूज कर रहे हैं, वैसे वैसे हम उनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स पे ध्यान रखेंगे। ओके, सो कुछ वर्ब्स में जहाँ ईडी लग रहा है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में, उनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। एंड जहाँ पे फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, सिंपली मीन्स कि यहाँ पे ईडी नहीं आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आ रहा है, वो हमारे लिए इरेगुलर वर्ब्स हो जाते हैं। ओके, सो ये जो पॉइंट है कि रेगुलर वर्ब्स क्या हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या हैं, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हमको वर्ब्स के थ्री फॉर्म्स पता होना है, स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ।
ओके, जैसे आप इरेगुलर वर्ब्स में देख रहे हैं कि कहीं पे फॉर्म सेम है, कहीं पे फॉर्म चेंज हो रहा है, कहीं पे फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकंड फॉर्म चेंज है। सो ये सारे चेंजेस ये मेमोराइज करने वाली बात है। एंड मेमोराइज कब अच्छे से हो जाएंगे, जब आप इनको यूज कर रहे हैं। तो सिर्फ वर्ब्स को मेमोराइज करने से फायदा नहीं होगा कि सिर्फ हम वर्ब्स को, उनके फॉर्म्स को मेमोराइज कर रहे हैं। अच्छी बात क्या होगी कि हम उनको सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं। जब सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो समझ में भी आएगा कि किस तरह से सेंटेंस में वो यूज हो रहा है वर्ड। एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्पेलिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज these verbs or the other words, nouns, adjectives, वो sentences में यूज करके देखने हैं। ओके, ऑल राइट, आई होप कि मैंने जो आप लोगों से लिस्ट शेयर करी थी कुछ वर्ब्स की, कुछ कॉमन वर्ब्स की, आपने उनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स फाइंड आउट किए होंगे। एंड आपने देखा होगा कि उनकी स्पेलिंग क्या है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, डिफिकल्टी हो, सो देन यू हैव कमेंट सेक्शन देयर, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट सेक्शन एंड you can raise your question, you can ask your question, or you can share your doubt there. ओके, सो ये जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब वाला पार्ट है, ये हमको बस ध्यान में रखना है कि हाँ, ऐसे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। ओके, स्पोकन में उनका कहीं हम ऐसे यूज नहीं करेंगे कि यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे इरेगुलर। वहाँ पे सिंपली हम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स यूज करेंगे। एंड वहाँ पे हमको स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो सेकंड फॉर्म्स हैं, एक यहाँ पे एक सिचुएशन है where we use a second forms, and what is that situation? That situation is known as past indefinite or simple past. इसको हम past indefinite भी बोलते हैं, simple past भी बोलते हैं। Okay, what is this situation? This situation is simply about talking about action. Okay, एक्शन की बात हो रही है दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में एक्शन हुआ। राइट, जो 5 मिनट पहले हुआ वो पास्ट हो गया। 5 मिनट पहले आपने कोई काम किया, आप कहीं गए, आपने पढ़ाई की, आपने टीवी देखी, पास्ट हो गया ना। 5 मिनट पहले ही हुआ हो, चाहे चाहे यस्टरडे हुआ हो, कल हुआ हो, लास्ट मंथ हुआ हो, लास्ट ईयर हुआ हो, कुछ टाइम पहले हुआ हो। तो कोई भी ऐसी एक्शन जो कुछ टाइम पहले हुई हो, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि वो पास्ट हो गया। राइट, ऐसी सिचुएशन को हम पास्ट इंडेफिनिट्स या सिंपल पास्ट बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम सिचुएशन समझ जाएं कि व्हाट इज दैट सिचुएशन जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म्स यूज करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट सिचुएशन? फॉर एग्जांपल, अभी जो आपने यस्टरडे की अगर जब आप बात करेंगे, पास्ट हो गया। लास्ट वीक की बात करेंगे, पास्ट हो गया। लास्ट मंथ की बात करेंगे, 5 मिनट्स पहले की बात करेंगे। ये सारी चीजें पास्ट है। आपने कर ली एक्शन, ध्यान में रखेंगे कि एक्शन की बात हो रही है, एक्शन होने की बात हो रही है। सो इसलिए तो हम वर्ब्स यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना है। ओके, एंड इसका जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हमको बनाना है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है दैट यू हैव टू कीप इन हेड। व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट। एंड गुड थिंग इज कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, सो यहाँ पे कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे वेदर यू यूज सिंगुलर सब्जेक्ट और यू यूज प्लूरल सब्जेक्ट, you use second form with all the subjects, okay, when you talk about past. Okay, सेकेंड फॉर्म यूज कर लेंगे। ओके, एंड कोई भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कल की बात कर रहे हैं, आपने गेटअप का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। क्यों यूज करना है गेटअप का सेकेंड फॉर्म? अब हमें ध्यान में होना चाहिए, स्पेलिंग ध्यान में होना चाहिए कि गेटअप उठने के लिए हमको सेकेंड फॉर्म यूज करना है, गॉट अप। सो देन यू कैन यूज इट कंफर्टेबली। सो आप क्या बता रहे हैं? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे। मैं कल जल्दी सुबह उठ गया था। दिस इज द सेंस कमिंग बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, कि मैं जल्दी सुबह उठ गया था। कभी कभी हिंदी ऐसी भी हो जाती है कि मैं कल सुबह जल्दी उठा। उठा, उठा था, बात एक ही है। राइट, सो सिंपल हमको ध्यान में ये रखना है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, दैट्स व्हाई you are using second form. Okay, I played football with my friends last Sunday. So you are talking about last Sunday. Okay, today is Saturday, you are talking about last Sunday, means this is past.
okay, and you want to talk about some action that happened on that particular day, on last Sunday को जो एक्शन आपने किया, आप उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो क्या एक्शन हुआ कि आपने खेला, खेला, राइट। सो यहाँ पे हम प्ले का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आई प्लेड फुटबॉल विथ माय फ्रेंड्स लास्ट संडे, सिंपल, right? So what is happening? You are simply thinking about past situation. You want to talk about past situation, and for that you are using simply second forms. Okay, जितने भी verbs, कोई भी action की बात करनी होगी, right? वहाँ पे उसका second form is important with spelling, with pronunciation, and then you can comfortably use that part. Okay, so evening की बात कर रहे हैं आप. You said I watched इन द ईव. सो जैसे ही आपने वॉच्ड यूज किया, सेकंड फॉर्म यूज किया, वहां पे मैसेज आ जाएगा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, चाहे आप वहां पे यस्टरडे यूज करें, नहीं करें, चाहे आप वहां पे 5 मिनट्स अगो या लास्ट संडे बात करें, नहीं करें, आप सिंपल सा मैसेज दे दिया आपने, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. क्या मैसेज मिला? जैसे ही कोई सुनेगा, जैसे ही कोई पढ़ेगा, उसको सेंटेंस का सेंस मिलेगा कि आपने इवनिंग में टीवी देखी थी. दिस इज द सेंस यू आर गिविंग. अब जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस करे थे, उनकी सिचुएशंस अलग है. दैट इज मोर रिलेटेड टू अबाउट हैबिट्स, अबाउट रूटीन. व्हेन यू से आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, वहां पे आप अपनी हैबिट की, अपने रूटीन की बात कर रहे हैं कि मैं इवनिंग में टीवी देखता हूँ. यहाँ पे आप बोल रहे हैं मैंने इवनिंग में टीवी देखी थी. ओके, सो यहाँ पे हम ये ट्राई कर सकते हैं, जैसे जब हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, हम डेली रूटीन की बात कर रहे थे, हैबिट्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था डेली रूटीन का. डेली रूटीन का जो आपने एग्जाम्पल लिया था, जिसमें आपने बोला कि आई डू दिस, आई डू दैट ऑन डेली बेसिस. डेली बेसिस पे मैं ये काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये हमने देखा था एग्जाम्पल. अब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ट्राई करें कि जो सारे सेंटेंसेस हैं, इसको हम इमेजिन करें कि हम कल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. टुडे सैटरडे, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्राइडे. फ्राइडे को आपने क्या क्या किया? फ्राइडे को आप जल्दी उठे थे, फिर आप फ्रेशन अप हुए, फिर आप स्कूल के लिए तैयार हुए थे, राइट. सो अगर आप किसी को ऐसी सिचुएशन में बात बताना चाह रहे हैं कि मैंने कल क्या क्या किया था, मैं कल कितने बजे उठा था, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, तो ये जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? सारे ही सेकंड फॉर्म हो जाएंगे. एंड मैसेज क्या जाने लगेगा? मैसेज ये जाने लगेगा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. कुछ पास्ट में हुआ, कुछ आपने एक्शन किया, कल आपने जितने भी एक्शंस किए, उसके लिए हम सारे सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म्स यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे ये ट्राई करके देखेंगे आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से. क्या इमेजिन करेंगे कि आप किसी को फ्राइडे के बारे में बता रहे हैं कि फ्राइडे आपने क्या क्या किया. ओके, एंड यहाँ पे देख रहे हैं जैसे दो सेंटेंसेस हैं, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर भी है. तो अब यहाँ पे हमको ये पता है कि यहाँ पे कुछ पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सबके साथ ही सेकंड फॉर्म यूज होना है. सो जहाँ पे आप बोल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, यू विल से आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या सेंस निकल रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठा था. सो उठा था मतलब पास्ट की बात हो रही है, राइट. इतना तो क्लियर है, राइट. किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं आप, तो वहां पे क्या बोलेंगे? ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी उठा था. वेकअप का सेकंड फॉर्म वोक अप, सो हम वो भी यूज कर सकते हैं. आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो यहाँ पे सिंपली हमको सिर्फ सेकंड फॉर्म्स का ध्यान रखना है. ओके, एंड चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जस्ट यूज सेकंड फॉर्म, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द पास्ट. पास्ट में आपने कोई भी एक्शन किया, राइट, वहां पे हम टाइम रिलेटेड वर्ब्स यूज कर सकते हैं, यस्टरडे यूज कर सकते हैं. ये अब हमारे ऊपर है कि हमको यस्टरडे या लास्ट मंथ या 2 days अगो क्या बात करनी है, राइट. लास्ट वीक की बात करनी है, जैसी सिचुएशन, जैसा हमको टाइम एक्सप्रेशन यूज करना है, हम टाइम एक्सप्रेशन यूज कर लें, एंड वहाँ पे पास्ट की बात कर लें. ओके, सो यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस एक बार फिर से ट्राई करके देखेंगे. पहले अपना डेली रूटीन शेयर करेंगे, राइट. एंड डेली रूटीन शेयर करने के बाद इमेजिन करेंगे कि अगर मैं किसी को
बता रहा हूँ कल के बारे में, अगर मैं किसी को बता रही हूँ कल के बारे में, सो मेरे सेंटेंसेस कैसे आएंगे? I got up early in the morning yesterday, then I freshened up. ईडी लगा दिया, बिकॉज फ्रेशन का सेकंड फॉर्म में हमको ईडी लगाना है। जब तक हमको पता नहीं होगा कि इसका सेकंड फॉर्म में ईडी लगना है, डिफिकल्टी होगी यूज करने के लिए। ओके। Then I freshened up. After that, I got ready for school. I got ready for school. After that, I took breakfast. I took breakfast. Take का second form took, have का second form had. दोनों ऑप्शन है हमारे पास, दोनों यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई हैड ब्रेकफास्ट। ओके। एट 8 o'clock I what? Yes, I went to school. Right? So you are talking about Friday, you are talking about past, right? You are talking about Thursday. अब ये जरूरी नहीं कि पास्ट मतलब सिर्फ फ्राइडे ही हो सकता है, ओके, थर्सडे भी, वेंसडे, कुछ भी, लेकिन दैट इज रिलेटेड टू पास्ट। लास्ट वीक भी हो सकता है, हमारा सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, लास्ट वीक आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then I freshened up, I got ready for the school. ये भी हो सकते हैं sentences. So this is all about understanding that you are thinking about past. You are using it as a past situation. Okay. So I remained in school till 2 o'clock. I remained, et लगा दिया हमने second form. I remained in school till 2 o'clock. मैं 2 बजे तक स्कूल में रहा, राइट, रहा था। ये हम ऐसे ही दोनों यूज कर सकते हैं कि कुछ ऐसे बोलते हैं कि मैं 2 बजे तक स्कूल में रहा था, कुछ ऐसे सेंटेंस यूज कर लें, मैं 2 बजे तक स्कूल में रहा, फिर मैं घर वापस आ गया, राइट। सो लाइक दैट, आई रिमेन्ड इन स्कूल टिल 2 o'clock. I studied. I studied all subjects there. I rested. Rested. I rested for a while. Yeah. क्या ऑप्शन है? I took a nap. Take the second form. I took a nap. यही सारे सेंटेंसेस एज इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट के भी साथ हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, बस जो हमको सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है वो यूज कर लेंगे। ही, शी, या अपने ब्रदर की बात कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन ही फ्रेशनड अप, ही गॉट रेडी फॉर स्कूल, आफ्टर दैट ही टुक ब्रेकफास्ट। सिंपल, राइट? द ओनली पॉइंट इज दैट वी आर यूजिंग वर्ब सेकंड फॉर्म्स। एंड गुड न्यूज़ क्या है, अच्छी बात क्या है, कि यहाँ पे कोई भी हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करना है। सारे ही सिचुएशन में जहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हम सेकंड फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं? बताइए कौन से सेंटेंसेस हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस है, राइट। सो पास्ट में जब पॉजिटिव सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हैं, तो आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं? विद ऑल द सब्जेक्ट यू आर यूजिंग सेकंड फॉर्म। Second form, whatever verb you want to use, you need to know the second form of that verb, and you can use it, and you can use it in a past situation. Okay, so एक बार ऐसे ट्राई करके देख, ऑलराइट। एक बार डेली रूटीन भी ट्राई करके देख लेंगे, अपना भी डेली रूटीन ट्राई करके देखेंगे, फैमिली मेंबर में से किसी का डेली रूटीन ट्राई करके देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। When you make any sentence, right, always pay attention to the sense of that sentence. Always pay attention to the situation of that sentence, क्योंकि जो भी sentence आप use कर रहे हैं वो clear होना चाहिए कि what is the purpose of using this sentence. If I am saying I get up early in the morning, if I say I complete my homework daily, what is the sense coming out? Okay. And if you say I completed my homework, then what is the sense coming? So understand whenever you make any sentence, it could be any sentence, right? कोई भी sentence हो सकता है, question, पोजीशन से हो सकता है, सिंपल सेंटेंस हो सकता है, पास्ट से, प्रेजेंट से, ओके, कोई भी सेंटेंस हो, उसका सेंस क्लियर होना चाहिए। सेंस क्लियर होने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटेंस हम कुछ यूज कर रहे हैं और हम कुछ और समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला आई गो टू मार्केट डेली, सेंटेंस हमने ये यूज कर लिया, और सेंटेंस हम ये सोच रहे हैं कि मैं रोज मार्केट जा रहा हूँ, या मैं मार्केट जा रहा हूँ। नो, व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट ऑफ योर सेंटेंस? आई गो टू मार्केट डेली, कि मैं रोज मार्केट जाता हूँ। सो लाइक दैट, सेंस शुड बी देयर, ओके, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सेंस, ओके। सो प्रेजेंट भी करेंगे यूज, एंड यहाँ पे पास्ट भी यूज कर लेंगे, इमेजिन करके कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैंने पास्ट में क्या किया, कल क्या किया, एंड मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे फ्रेंड ने कल क्या किया।
सो ऐसे दोनों सिचुएशन यूज करके सेंटेंसेस ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पे सिंपली आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म्स यूज कर रहे हैं आप, राइट। सो यूज करिए, एक बार देख के पढ़िए, एंड सेकंड टाइम without reading, just by yourself. Okay, when you are doing that by yourself, then would be better that if you could record your answer, right? Record करिए, and after recording then listen back. Okay? उसको फिर से सुनिए, so you will get the idea कि हाँ, simply आप comfortably in situations को आप use कर पा रहे हैं, and you are able to make different sentences. Okay, so ये अच्छे से यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। ओके, एंड दोनों सिचुएशंस ट्राई करेंगे, एंड सिंपल से सेंटेंसेस हैं, लेकिन हैबिट में लाने के लिए आपको बार बार यूज करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग टेक, देन सेकंड फॉर्म टुक यूज करना है, कंप्लीटेड यूज करना है, राइट, प्लेड यूज करना है। अब वो जैसे जैसे सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस आएंगे, आप वर्ब्स यूज करेंगे, उन वर्ब्स के सेकंड फॉर्म्स आपको ध्यान में रख के प्रॉपरली उनको प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेक दिस सेंटेंस, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। ओके, डेली आपने अपनी हैबिट बताई, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट यस्टरडे, राइट, हाउ विल यू से व्हाट इज द चेंज? आई रेड। ओके, बिकॉज हमको पता है रीड का सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, स्पेलिंग सेम रहेगी, READ स्पेलिंग सेम रहेगी, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने कल न्यूज़पेपर पढ़ा था, पापा ने कल न्यूज़पेपर पढ़ा था, सो हाउ विल यू से आई रेड न्यूज़पेपर यस्टरडे, माय फादर रेड न्यूज़पेपर यस्टरडे। Red spelling is READ, but pronunciation is red. Okay, so pay attention to sentences, to the forms, to the pronunciation like this. Okay, इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे, बोल के देखेंगे। You can share, okay, with your friend, or you can simply stand in front of mirror and you can go on talk about it. चलिए, next point, that when we make negative sentences, अभी हमने पॉजिटिव एग्जांपल्स देखे, पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे जहाँ पे आप सेकंड फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप पास्ट में बोल रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया था, कोई एक्शन आपने नहीं किया था, तो नहीं के लिए अब आपको क्या ध्यान में रखना है, एक छोटा सा चेंज हो रहा है, एंड दैट चेंज इज इम्पोर्टेंट, राइट, कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, हमको नहीं के लिए डिड नॉट यूज करना है, एंड जैसे ही डिड नॉट यूज होगा उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, आफ्टर डिड नॉट यू विल नॉट यूज सेकंड फॉर्म। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर रखें कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, हालांकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ओके, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में यू विल ओनली यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो एक पॉइंट बड़ा क्लियर है यहाँ पे कि सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होना है, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में। You will use second forms only in positive sentences. Okay, keep it clear. You will use second forms only in positive sentences. But when you talk about negative sentences, you want to talk about something that didn't happen. ओके, सो वहां पे आप यूज करेंगे डिड नॉट विथ ऑल द सब्जेक्ट। अगेन सिंपल है, यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है सिंगुलर प्लूरल के, सिंगुलर के साथ ये यूज करिए, प्लूरल के साथ ये यूज करिए, विथ ऑल द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू यूज डिड नॉट, एंड देन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यू विल यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, मिस्टेक क्या हो जाती है, डिड नॉट यूज कर रहे हैं और फिर सेकंड फॉर्म भी यूज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, रॉन्ग सेंटेंस, मिस्टेक। ओके, डिड नॉट यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने पहले किए हैं जहाँ पे हमने डिड नॉट यूज किया एंड फिर उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। डिड नॉट के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला था सेंटेंस आई हैड अ मोबाइल, ओके, पोजीशन आई हैड मोबाइल, जब आपने उसको नेगेटिव यूज किया, राइट, आई डिडंट, एंड डिडंट के साथ हैड का फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिडंट हैव अ कार, right, like that. Okay? So according to the situation you use, okay, जब आप मॉडल वर्ब यूज कर रहे थे जहाँ पे हमने हैज टू हैव टू, पास्ट सिचुएशन में आपने क्या बोला, आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क, आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क,
मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना था. When you said negative of it, then you used didn't. I didn't, and जैसे ही didn't use हुआ तो had to का first form have to. I didn't have to complete my work. मुझे अपना काम complete नहीं करना था. In the same way, because यहाँ पे didn't use हो रहा है, past situation है, past का हमको hint मिलता है didn't से, so आप उसके बाद क्या use करेंगे? verb का first form. Okay, and ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट यूज कर रहे हैं, तो इसको हम डिडंट नहीं बोलेंगे, ये डी साइलेंट रखेंगे. सो कैसे प्रोनाउंसिएशन आएगा जब शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं आप? डिडंट. ओके, सो यू विल से डिडंट. You can also say did not, but it's better to use didn't in spoken. Okay, didn't. Second D will remain silent. Okay, so for example, negative sentences use kar rahe hain aap. Simple sentences. You are talking about past, something that you didn't do, right? You are making sentences with the help of didn't. With after didn't, you are using first form. So I didn't get up early in the morning yesterday. I got up late. Okay. See, I didn't get up early in the morning yesterday. All right. I got up late. So when you are making positive sentence, use second form. When you are making negative sentence, use first form with didn't. Okay. So no, don't, no, doesn't. Didn't for past. Okay. So कल मैं जल्दी नहीं उठा था. I got up late. मैं देर में उठा था. She didn't call me. I called her. Okay. She didn't call me. राइट. सो यहाँ पे दोनों सेंटेंस आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे आ रहा है. शी डिडंट कॉल मी, आई कॉल्ड हर. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. उसने मुझे कॉल नहीं किया था, मैंने किया था. आई कॉल्ड हर. राइट. रोहित डिडंट मेक टी, ही मेड जूस. ओके. गेटिंग अंडरस्टैंडिंग किस तरह से सेंटेंसेस आ रहे हैं. पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है रोहित डिडंट मेक टी यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कुछ भी हो सकता है. वो आप क्लियर कर लेंगे टाइम एक्सप्रेशन यूज करके. फॉर एग्जाम्पल रोहित डिडंट मेक टी यस्टरडे, ही मेड जूस. ओके. सो समथिंग ही डिडंट डू एंड समथिंग ही डिड. कुछ उसने नहीं किया एंड कुछ उसने किया था. सो जो किया था that is positive part, जो नहीं किया था that is negative part. So what are you saying? Rohit didn't make tea, he made juice. So you are giving this information. They didn't like the film, but I liked the film. Okay. They didn't like after didn't first form, but I positive sentence second form. But I liked the film. Okay. They didn't like the film, but I liked the film. He didn't go to the party. He didn't. Okay. Didn't. So keep this D silent. He didn't go to the party. He went. Okay. So for example, you are giving information about your brother. ओके. ब्रदर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? कि वो पार्टी में नहीं गया था. कहाँ गया था? ही वेंट टू द पार्क. वो पार्क गया था. सो गो का सेकंड फॉर्म went. He went to the park. So understanding these all are very important sentences. ये जो structure है past indefinite, ये equally important है present indefinite से. Because we use all the time these structures, present indefinite, past indefinite, to talk about majority of things. इतनी कॉमन चीजें हैं, चाहे प्रेजेंट के बारे में बात करें, पास्ट के बारे में बात करें, वी यूज देम अ लॉट. राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इनसे हम सुपर हैबिचुअल हों. ओके. एंड ये हैबिचुअल होने के लिए आपको इनको बार बार यूज करना है सेंटेंसेस को. एंड यूज करने के लिए सिंपली क्या करेंगे? थिंक. सोचें कि आपने कल क्या किया था. ओके. आपने डे बिफोर यस्टरडे क्या किया था. आपने लास्ट वीक क्या किया था. थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड मेक सेंटेंसेस, टॉक अबाउट इट. राइट. सो वो ऑटोमेटिकली सब प्रैक्टिस में आ जाएगा. लास्ट वीक आपने क्या क्या किया था. थिंक अबाउट इट. So last week I didn't go to school. I went to my friend's house. We studied there, right? We played chess there. We played Ludo there. Then I didn't go to the playground, right? We watched TV together. Anything, जो भी है, right? उसको recall करिए and then bring that into practice. उसको practice में लेके आइए. सो जितना ज्यादा आप ऐसे यूज करेंगे लैंग्वेज को, राइट, यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस. थिंक अबाउट योर फ्रेंड.
ओके, थिंक अबाउट समवन फ्रॉम योर फैमिली के बारे में सोचिए, ब्रदर सिस्टर, उन्होंने ये स्टडी क्या किया, राइट, बिकॉज यू नो कि उन्होंने क्या किया, यू नो अबाउट इट, राइट, टॉक अबाउट इट, डेली वो क्या करते हैं, टॉक अबाउट इट. सो दैट्स हाउ यू ओनली थिंक and you make sentences. When you think, when you make sentences, you understand कि किस तरह से हम sentences यूज कर रहे हैं. सिर्फ सुन के समझ के कि हाँ ये सेंटेंसेस ऐसे यूज हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जब आप एक्चुअली उसको यूज करके देखेंगे, देन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. वो आपको एक्चुअल पता चलता है. दैट इज द थिंग दैट यू अंडरस्टैंड कि दैट ओके, आई हैव टू से लाइक दिस, आई हैव टू स्पीक लाइक दिस. और उसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि मैं सोच रही थी कि हाँ इसको मैं इजीली बोल सकती हूँ, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट इज नॉट कमिंग. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सोचा कि हाँ दिस इज वेरी इजी, आई कैन टॉक अबाउट माई फ्रेंड, आई कैन टॉक अबाउट माई ब्रदर, right? But when you actually start talking, then you find difficulty in terms of telling, in terms of using sentences, right? So that's why it's important to keep on making sentences. Okay. सो नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो आपको ध्यान में रखना है. एंड देन ये चेंज कब अच्छे से ध्यान में रहेगा, जब आप इनको यूज करेंगे, सेंटेंसेस को यूज करते रहेंगे, तो फिर ये आपको ध्यान भी नहीं रखना होगा कि डिंट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होना है, वो ऑटोमेटिक आएगा. आफ्टर डिंट फर्स्ट फॉर्म विल कम ऑटोमेटिकली, राइट? बट फॉर दैट इन द स्टार्टिंग यू हैव टू मेक सम एफर्ट्स. ओके, सो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज किए पास्ट इंडेफिनिट के, जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म्स यूज कर रहे हैं. हमने नेगेटिव सेंटेंसेस यूज किए पास्ट सिचुएशन के, जहाँ पे हम डिडंट यूज कर रहे हैं, एंड देन वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म्स आल्सो. ओके. एंड जितने भी ये ऐसी सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल, जितने भी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस ट्राई कर रहे हैं, राइट, द बेस्ट पार्ट दैट make them bring them into practice, right? Make a lot of sentences, make a lot of sentences, positive sentences, negative sentences. And itni achhi and easy exercise hai that always think about past in the sense कि आपने जो भी कल किया. So for example, आपने जो भी कल किया, you can think about it and you can make sentences. Okay, so एक सिंपल सी हैबिट डालिए अपनी ये स्ट्रक्चर्स को यूज करने की. वो क्या हैबिट होगी? That every day when you go to bed, at the time of sleeping, at the time when you sleep at night, right? सारी जो जितनी चीजें आपने उस दिन की हैं, राइट, क्योंकि वो पास्ट हो गई. ओके, मॉर्निंग में आपने जो किया, आफ्टरनून में जो आपने किया, इवनिंग में जो आपने किया, think about it and talk about it. Okay, talk to yourself. Think about that. Okay, I got up at 8 o'clock today, then I got ready, then I took breakfast. और कभी कभी ऐसा होगा कि आप बोलेंगे then today I didn't take breakfast. Okay, I went to school, I went to college, right? I went to my friend's house. Lot of different sentences will come. लेकिन एक हैबिट डालिए कि जब भी आप बिफोर स्लीपिंग एक क्विक एक्सरसाइज, राइट, क्विक एक्सरसाइज जो भी आपने किया उस पर्टिकुलर डे में, राइट, उसको थिंक, रिकॉल एंड मेक सेंटेंसेस. Okay, and it's a very simple and easy exercise just to get into the habit of thinking and making sentences. Okay, so एक नॉर्मल वे में हम उस हैबिट में चले जाएंगे जहाँ पे हम नेचुरली यूज कर रहे हैं. बिकॉज नेचुरल इसलिए है क्योंकि वो आपने किया, यू नो अबाउट इट कि मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया था. सो इट्स इजी फॉर यू टू थिंक एंड टू मेक सेंटेंसेस. इजी हो जाएगा फिर वो उसके बारे में बात कर, राइट. थिंक अबाउट योर मदर, थिंक अबाउट योर सिस्टर, थिंक अबाउट योर ब्रदर. आज उन्होंने क्या क्या किया था, right, when you are sleeping, before sleeping, not when you are sleeping, before sleeping, right, when you are about to sleep. उस वक्त ये सारे sentences एक बार quickly, right, talk about these sentences. Okay, and थोड़ा जल्दी जाएं, ऐसे नहीं जाएं कि बिल्कुल नींद में है और बेड पे लेटते ही सो गए. Oh, then you will not be able to do this exercise, right? So yeah, so you have to do this.
on daily basis, at least for some time. कुछ time करके देखिए, and then you will see that all these sentences are coming naturally, right, comfortably. All right, चलिए जल्दी से अब हम देखते हैं कि after negative sentences, when you ask questions, okay, जब आप questions पूछेंगे, so simply you will follow this structure. What is that structure? जैसे आपको आइडिया है, हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, सो जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, एंड यही यहाँ पे भी होना है. सो डिड फॉर पास्ट सिचुएशन, and with it you will start question, you will use subject, verb first form, ऑब्जेक्ट, टाइम एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, दैट ऑल डिपेंड्स. ये सारा डिपेंड करता है, टाइम एक्सप्रेशन यूज करना नहीं यूज करना, ये डिपेंड करता है. ओके, सो यहाँ पे यू आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट समथिंग दैट हैपन, कोई एक्शन पास्ट में हुआ, क्या हुआ था, राइट. यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या आपने ऐसा किया था, क्या आप जल्दी उठे थे, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया था, क्या आपने स्कूल में अपने लेसन्स अच्छे से पढ़े थे, क्या आप स्कूल से 2 o'clock पे वापस आए थे. So if you are thinking all these questions, okay, if you want to ask these questions, simply you have to follow this structure. Okay, simple. Okay, so आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, क्या आप जल्दी उठे थे. सो जल्दी उठे थे सिंपली के हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो इफ यू आर मेकिंग अ सेंटेंस, डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो उनको समझ में आ जाएगा जैसे ही सेंटेंस सुना, डिड यू गेट अप अर्ली. सो डिड से मैसेज इज क्लियर, ओके, दैट यस यू आर asking a past related situation. Did you get up early in the morning? Your friend will say, yes, I got up early in the morning. Yeah, वो क्या बोलेंगे, वो नो बोलेंगे. सो नो जब बोलेंगे, नो, आई डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे. आई डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे. अब देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, तो हमको पता है कि ये यस नो क्वेश्चंस हैं. ओके, सो यहाँ पे यस में भी ना आंसर हो सकते हैं, नो में भी आंसर हो सकते हैं. सो आप दोनों आंसर्स ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस के, एंड खुद से भी क्वेश्चन सोचेंगे कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं पास्ट यस्टरडे से रिलेटेड. वो आप खुद इमेजिन करिए, खुद यूज करिए, सेंटेंसेस, क्वेश्चंस क्रिएट करिए, एंड देखिए उनके आंसर्स कैसे देंगे आप. डिड शी वॉच टीवी इन द मॉर्निंग, डिड शी वॉच टीवी इन द मॉर्निंग, डिड आई स्कोल्ड यू, डिड दे टेक द टेस्ट ऑन सैटरडे. Okay, so these are some examples. Think about your own examples. Okay, खुद के example सोचिए, खुद के question सोचिए, and जब question सोच रहे हैं, then give both answers, yes answer and no answer also. Okay, and if there is someone with you who can practice with you, who can ask you some questions, तो वो तो और भी अच्छी बात है, right? कि आप आपस में एक साथ practice कर रहे हैं, right? You are practicing among your friends, then it's a wonderful thing. So वहाँ पे उनसे बोलिए कि ask me some questions, different questions, I will give you answers. You ask some different questions, they will give answer, or he, she, right? जिसके भी साथ आप practice कर रहे हैं, they will give answer, and that way you can comfortably, easily practice. You can test your understanding, you can check, right, your understanding related to different sentences, related to different situations. You can see whether you are comfortable or there is some confusion, there is some doubt. वो check करते रहे, right? And ये सब हमको कब पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब हम ट्राई करेंगे, सेंटेंसेस ट्राई करेंगे, राइट. सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट to keep thinking, keep making different sentences, and to use them in different situations. Okay, जितना different situations में हम use करेंगे उतना understanding clear होगी. So आज जो है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ऐसी situation के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे action past में कोई भी action, right, and for action we need a verb. उसके लिए हमको verb चाहिए. And when we talk about past situation, it simply means that we need to use the second form of the verb. Okay, so यहाँ पे important क्या है? Second form is important, spelling is important, pronunciation is important for positive sentences. तो यहाँ पे positive sentences में हम second forms use कर रहे हैं. Otherwise, जैसे आपने examples देखे कि जब हम negative sentences use कर रहे हैं,
वी आर यूजिंग डिडंट एंड विद डिडंट हैव। जब हम क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग डिड, एंड जैसे ही डिड आ रहा है बिकॉज डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू का पास्ट फॉर्म डिड है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो किसी भी सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म्स एक साथ यूज नहीं होना है, सो इसलिए डिड इज ऑलरेडी पास्ट and that is giving the idea that you are using past situation, and after that you are using first form. So question पूछने का structure आपको ध्यान में है. Now think of different questions. Okay, it could be present, it could be past, it could be from position, it could be from modal verb, right? Think different questions. And as you are thinking different questions, also try to answer those questions. Okay, and उनके answers भी दीजिए. Okay, and try to think the different sentences, use different verbs, right? जितने ज़्यादा verbs हम use करेंगे तो हमारी verbs की भी एक practice हो जाएगी, वहाँ पे हमारा vocabulary भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, right? That you know different verbs as per the situation and you are able to use them, you are able to use different forms, right? Okay, do it. चलिए, एंड नेक्स्ट क्विकली देख लीजिए हाउ टू यूज how to make WH question words when you ask some questions. So same है, जो हमने question structure follow किया है वही structure follow करेंगे, but you want to use WH words, so for that you use WH words and you will follow this structure. Okay, and because you are using WH words, so it simply means that you cannot give yes no answers, right? Simply you will give the answer, you will tell the reason. For example, if someone asks you, what did you do yesterday? Right, so this is a wonderful question. What did you do yesterday? Here you can talk about all the things. Okay, ये question से हमको क्या एक opportunity मिल रही है कि हम सारी चीजें बता दें, that कि yesterday मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, क्योंकि question क्या पूछा जा रहा है, आपने कल क्या किया था? What did you do yesterday? Okay, so answer this question. ये question को answer करिए, right? पूरा बताइए आपने क्या क्या किया था. Okay, वेयर डिड ही गो इन द इवनिंग? सो फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो इवनिंग में कहाँ गया था, राइट? वो इवनिंग में कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो इन द इवनिंग, राइट? सो अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, विद ऑल द सब्जेक्ट हम सेम स्ट्रक्चर सेम वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट? सो इट्स वेरी इजी. हाउ डिड दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम? उन्होंने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी? दिस इज द सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. सो थिंक ऑफ डिफरेंट WH related questions. Okay, WH related different questions सोचिए and then try to give the answer of these questions. Okay, जितने ज़्यादा आप questions खुद से सोचेंगे या कोई आपके साथ है जो प्रैक्टिस कर रहा है, राइट, जो आपके साथ सेंटेंसेस यूज कर रहा है, वो तो फिर एक अलग ही बेनिफिट हो जाता है, एडवांटेज हो जाती है. ओके, सो टेक द हेल्प, okay, from your friends, ask them to sit with you, to practice with you, right? To ask you some questions, you give answers, and you ask them some questions and they give answers. So that is the best way to practice. And if you are not practicing this way, so then simply, right, you can stand in front of mirror and you can practice different sentences, different questions, and you can give different answers, and you can see that कितना comfortable हैं आप, right, in terms of recalling different sentences, recalling structures, in terms of whatever you are thinking, you are able to talk about it, because that is the important part, right? So ये जितने भी structures हम कर रहे हैं, step by step देख रहे हैं, इनको समझ रहे हैं situations के हिसाब से, ये इसलिए हैं कि जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी सिचुएशन वाइज आपको कुछ शेयर करना है, बोलना है, पूछना है, वो आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकें. Okay, so today we have covered this part, past indefinite, simple past. We have seen all the different structures that you will use to talk about something that happened earlier, right? जो हुआ था, right? एंड इसको यूज करके देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो हमने डेली रूटीन की बात करी है वो आप ट्राई करके देखेंगे. जो एक्सरसाइज हमने बात करी है कि सोने से पहले जो भी आपने किया उस दिन, वो सारे सेंटेंसेस यूज करिए, ट्राई करके देखिए, उसकी हैबिट डालिए, ये करेंगे, राइट? एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी
सम एक्सरसाइजेज जहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर होगा कि क्या डिफरेंट सेंटेंसेस आ सकते हैं, क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, राइट? सो ये आपको खुद से भी ट्राई करते रहना। थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जितना ज़्यादा सोचेंगे, ओके, ट्राई करेंगे सेंटेंसेस, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। And keep on practicing, okay, and keep on using all the structures regular. ऐसा नहीं कि क्लास में आज ये स्ट्रक्चर हुआ तो सिर्फ इसी की प्रैक्टिस हो रही है। जितने स्ट्रक्चर्स पहले हो गए हैं वो भी रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जब भी तो हैबिट होगी, right? So keep on doing it, keep on practicing, and from here we will do rest of the things in the next class. Okay, and remember that you have to do it on continuous basis, on a regular basis. Okay, so keep this important thing in hand. All right, and yes, that's it for today, and we'll meet in the next class. Okay, bye bye everyone, take care.